Very welcome to all of you. Today we will revise present indefinite tense with the help of these examples. Okay? आज हम present indefinite tense को इन examples के through revise करेंगे. So now let's start. Here point first is तुम खाना खाते हो. First sentence is तुम खाना खाते हो. इसे हम 4 प्रकार के sentences में बदलेंगे. First one is affirmative, second one is negative, and third one is interrogative, and fourth one is negative plus interrogative. Clear? So for the affirmative मैंने आपको बताया था the rule is subject plus s और es with the verb and उसके बाद आप object लिखेंगे and it will be completed. So here the subject is तुम and we use for तुम you. हम तुम के लिए you यूज़ करते हैं. तुम second person के साथ साथ plural भी होता है. ठीक है. So हम you के संग वर्ब में s या es नहीं लगाएंगे. Firstly we will write you. Now if we will talk about the verb, here the verb is eat. खाना खाना, खाना क्या है? क्रिया. ओके, खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं eat. So you eat. अब यहाँ पर हम eat के संग s या es ऐड नहीं करेंगे. s या es सिंगुलर के संग ऐड होता है. ओके, तो हम यहाँ पर eat के संग s और es ऐड नहीं करेंगे. We will simply write eat here. You eat. क्या खाते हो? Food. You eat food. And do not forget to put the full stop. So the sentence becomes you eat food. Clear? Now negative sentence के लिए जो rule होता है वो होता है आपका subject plus do or does plus not plus verb with it first form plus object. Okay? So here the subject is you. You. अब you is a plural subject. So हम इसके संग क्या use करेंगे? Do. You do not. You do not eat. Verb. Object is food. You do not eat food. Full stop. Clear? Next one is interrogative. Interrogative में क्या होता है? ये जो helping verb होती है ये पहले आ जाती है ना? And the rule for interrogative is do or does plus subject plus verb with its first form plus object. तो सबसे पहले हम लिखेंगे helping verb. Here's the helping verb for you is do. तो do. Now subject you. Do you. Verb. Do you eat food? क्या तुम खाना खाते हो? With question mark. Most important thing when in interrogative sentences is कि do not forget to put the question mark after each and every sentence. क्योंकि question mark वही मतलब ये represent कर रहा होता है कि this sentence is a type of interrogative sentences. Okay? Next is negative plus interrogative. Negative plus interrogative में क्या हो जाएगा? Helping verb और subject के बाद not लग जाएगा. So it will become do you not. Do you not eat food? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? Question mark. अब इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? एक तो इसमें पूछा भी जा रहा है और इसमें काम के ना होने की भावना भी हो रही है, प्रतीत भी हो रहा है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सबसे पहले आपका जो हिंदी सेंटेंस था इट वॉज तुम खाना खाते हो. तुम खाना खाते हो में हम अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे? यू ईट फूड. तुम खाना खाते हो. सिंपली वी विल राइट. नेगेटिव में हम इसमें नॉट ऐड करेंगे बट किसके साथ? डू और डज के साथ. हम यहाँ पर डू लिखेंगे, डज नहीं लिख सकते क्योंकि वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड यू इज नॉट अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज डू विथ यू. यू डू नॉट ईट फूड. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी. डू यू ईट फूड विथ क्वेश्चन मार्क. अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू और यू के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे. डू यू नॉट ईट फूड with question mark. So simply we will translate English Hindi sentences into English in present and definite tense like this. Okay. Next is रोहन किताब पढ़ता है. Firstly we will change this Hindi sentence into affirmative sentence. Okay. So affirmative में सबसे पहले आएगा आपका subject रोहन, ROHAN, ROHN, रोहन किताब पढ़ता है. देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये नोट डाउन करना है कि रोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? तो इसमें जो भी वर्ब आएगी फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस हम उसमें क्या ऐड करेंगे? एस या ई एस. ओके, सो हियर वर्ब इज पढ़ना. पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? रीड. रोहन रीड, बट वी विल नॉट राइट रीड, हम इसको रीड्स लिखेंगे.
रीड्स। अब इसी में हमने एस ही ऐड क्यों किया? हमने इसमें एस इसलिए ऐड किया क्योंकि इसका जो लास्ट लेटर है इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। अगर ये एक वाउल होता सो वी विल ऐड इन इट ई एस। हम इसमें क्या ऐड करते? ई एस, बट ऐसा नहीं है, सो वी विल सिंपली ऐड एस इन रीड। रोहन रीड्स, क्या पढ़ता है? बुक। रोहन रीड्स बुक, BOKK बुक, फुल स्टॉप। रोहन किताब पढ़ता है, रोहन रीड्स बुक। अब रोहन किताब नहीं पढ़ता है, फॉर दिस हम क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट और डज नॉट। हम यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि रोहन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ डज। सो रोहन डज नॉट, डज नॉट क्या नहीं करता है? रोहन बुक नहीं पढ़ता है। सो रोहन डज नॉट रीड बुक, रोहन डज नॉट रीड बुक, फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या रोहन किताब पढ़ता है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें आप क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। सो वी विल सिंपली राइट डज रोहन रीड बुक, डज रोहन रीड बुक, एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क। डज रोहन रीड बुक, क्या रोहन किताब पढ़ता है? एंड गाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वन सेंटेंस इज कि विथ रोहन आप यहाँ पर रोहन में आर को कैपिटली बनाएंगे, है ना। इट इज़ रूल कि आप सेंटेंस जब लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी स्पेशल या स्पेसिफिक हम जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है इट शुड बी कैपिटल। ओके, सो डज रोहन रीड बुक। नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या रोहन किताब नहीं पढ़ता है? तो इसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे। डज रोहन नॉट, डज रोहन नॉट रीड बुक, does Rohan not read book, and question mark. Okay, so in this manner we will do translation of any present indefinite sentence into 4 type of sentences. Okay, I hope आपको ये समझ में आया हो। Here I also have 3 and 4 question. Question number 3 is, क्या प्रिया बाजार जाती है? हम सब गाना नहीं गाते हैं। I wish and I am hoping that you will try these 2 Hindi sentences to change into English sentences by your own. Till then, be happy and safe at your home.